शांति। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत। We would like to welcome you all on behalf of Independent Research Ethics Society. The milestone is 1395. We are reaching towards our goal, and definitely we are moving to achieve our unknown, undecided target, infinite target. Today, we are celebrating Homeopathy Day through our first webinar. Then our Swasth Vrat series is there, where we will discuss malnutrition and Ayurvedic remedies. And third webinar, again celebration of Cheti Chand, the Sindhi New Year, with experts for scientific values. Thank you very much. Now I would like to request Professor Vishnu Prasad Sharma ji for his welcome address. Namaskar, Hari Om, good evening to everybody. Respected distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen. Welcome all of you to this AYUSH SAMRIDDHI International Webinar Series on homeopathy, advancement and opportunities. Most important subject today we have. In this webinar, we have eminent guest speaker. I want to welcome Dr. A.K. Gupta, founder, director, ex-professor, Sur Homeo Medical College of Homeopathy, UK, New Delhi. Namaskar, sir, and welcome you to this AYUSH SAMRIDDHI webinar. Next, I want to welcome Dr. Juhi Gupta, Assistant Professor, Human Physiology, in charge Department of Research Methodology and Biostatics for PG, Government Homeopathic Medical College and Hospital from Bhopal. Namaskar, madam, and welcome you to this AYUSH SAMRIDDHI webinar. Next, I want to welcome Dr. Dev Om Banerjee, lifestyle disorder expert, PG guide, Honeyman College of Homeopathy, ex-head medical service, Dr. Batra Positive Health Clinic, Dhanbad. Namaskar, sir, and welcome you to this AYUSH SAMRIDDHI webinar. Next, I want to welcome Dr. Dibba Dixit, Senior Homeopathy Consultant from Gwalior. Namaskar, madam, and welcome you to this AYUSH SAMRIDDHI webinar. Next, I want to welcome Dr. Mahesh Pagadla, National Finance Secretary from Hyderabad. Namaskar, sir. Thank you, and Namaskar, ji. Namaskar, ji. Hari Om. Thank you for welcoming me. Director, School Institute of Homeopathic Research from Kolkata. Namaskar, sir. I am ready to open up. So, Dr. SKRP, Homeopathic Medical Founder and Medical Research Private Limited from Indore. शायद उनका कनेक्शन कट हो गया है। मैं महेश जी का स्वागत करता हूं, सभी वक्ताओं का स्वागत करता हूं और अग्निहोत्री सर से निवेदन करता हूं उनके प्राकर्तिन सहित महेश जी को आह्वान करें। आदरणीय वीके अग्निहोत्री जी, मेरे यहाँ लाइट जा चुकी। धन्यवाद प्रोफेसर शर्मा जी। लेकिन हमारी IRES की लाइट कभी ना खत्म हो, कभी ना कम हो, कभी ना मध्यम पड़े और कभी ना जाए। मेरी ये शुभकामनाएं हैं।
मैं डॉक्टर अग्निहोत्री यहाँ पर अभी जो जो सम्मान और स्वागत की प्रक्रिया चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने आज के समस्त अतिथि वक्ताओं का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करते हैं, जो आज हमारे इस मंच को होम्योपैथी जैसी चिकित्सा पद्धति के द्वारा मानव जाति की कितनी सेवा कर रहे हैं और किन किन विषयों पर किन किन रोगों पर उनका एक अपर हैंड है, मैं कहूँगा। तो उस सब की जानकारी मुझे मिलने जा रही है आज आप लोगों की सहायता से। हम आज के सभी अपने अतिथि वक्ताओं का बहुत स्वागत करते हैं। प्रश्न यह है कि चूंकि हम लोग आयुष वाले हैं और हम सब जानते हैं कि सब लोग जानते हैं कि नो पैथी इज कंप्लीट एंड नो पैथी इज परफेक्ट, है ना। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम सब पैथी का एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन लेते हैं, समन्वय करते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में करते हैं और कई बार इंटीग्रेटेड वे में भी करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हर पैथी की अपनी लिमिटेशंस हैं, चाहे वो प्रिपरेशन के मामले में हो, चाहे पथ्य उनके उनके जो नुस्खे होते हैं और उनके जो परहेज होते हैं वो कई बार इतने सख्त हो जाते हैं कि मुश्किल हो जाता है। उस पैथी के लोग कहते हैं चलो इससे अच्छा तो हम ये कर लें। होम्योपैथी के बारे में भी एक किंवदंती था पहले कि होम्योपैथी वाले जो है वो बहुत सारे परहेज करा देते हैं। तो उसकी गहराई समझ जाना, मेरे यहाँ भी बनर्जी मुखर्जी काफी लोग करते थे कि वो सुगंध वाली वस्तुओं को खाने का थोड़ा मना करते हैं, खाने का या यूज करने का। और भावना रियलिटेंटली ये निकली, डॉक्टर हमारे बनने के बाद ये बताया गया कि आप 20 मिनट 22 मिनट या आधा घंटे पहले कोई भी चाहे वो कॉलगेट या टूथपेस्ट है या हींग है या लहसुन है प्याज है, ऐसी चीजों का, अजवाइन, इनका सेवन नहीं करेंगे और ऐसे ही दवाई लेने के आधा घंटे बाद तक, जिससे कि उस दवाई पर जो हमारा मदर टिंचर का जो इम्पैक्ट रहता है जो वो अपना काम कर सके, उसके बाद ले ले। और हमें भी इससे फायदे मिले। स्पेशली एक एपिस फेंका था, बहुत था, एक कार्वेज था, कार्वेज के बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। तो कुल मिला के हम ये होम्योपैथी के अधिकारियों से, उनके अधिकृत चिकित्सकों से, उनके शोधकर्ताओं से और उनके मैन्युफैक्चरर से, जो भी वो दवाई पहले तो प्योर जर्मन चलती थी, आजकल एसपीएल की बहुत चलाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो उन सबकी हम जानकारी लेने के लिए आप सबको हृदय से स्वागत भी करते हैं और आमंत्रित भी करते हैं। आज होम्योपैथी डे है, इसलिए क्योंकि वो हनुमान जी के बर्थडे से के कमेमोरेशन में मनाया जाता है, तो आप सभी को आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपको ग्रीटिंग्स ऑन द ईव ऑफ द होम्योपैथिक डे। विद दीज वर्ड्स आई invite you all. We are eager enough to listen all the means deep, full of knowledge, thoughts and the ways. जो भी आप उनको टिप्स देंगे, जो भी आप उनको मार्गदर्शन कराएंगे, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आमंत्रण है। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि प्रोफेसर पवन शर्मा जी ने कहा है, मैं आदरणीय डॉक्टर महेश जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आज इस विषय के शुभारंभ के लिए अपने आशीर्वचन देने की कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर महेश थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार, वेलकम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबके लिए जैसा वर्ल्ड होम्योपैथी डे का शुभकामना। जैसे ये आयुष का है, अभी ये आज होम्योपैथी का है, आयुष का भी अभी सबके दिन सबका अपन वी हैव टू मेक इट एज ए जैसा फेस्टिवल जैसा है। ये सिर्फ होम्योपैथी बोल के नहीं, होम्योपैथी इज वन ऑफ द विंग ऑफ आयुष। वी हैव टू थैंक इवन अपना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी for bringing all these different pathies into one as आयुष। एक ऐसा एक आयुष का जो ब्रांच बना दिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी इसमें लगा के, एंड ही इज ट्राइंग टू प्रमोट आवर ओल्ड ऑल सिस्टम्स टू फाइट बैक ऑल द, जैसे अभी है कि उसका जो इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड वाइड में, उसका स्प्रेड बहुत कर रहे हैं। जैसे है अभी इससे पहले जैसे आयुष इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, फर्स्ट वाला जैसे दुबई में 2 इयर्स बैक हो गया था, 3 इयर्स बैक हुआ है। सेकंड आयुष आयुष कॉन्फ्रेंस एक्सपो जैसे सेकंड इट वाज इन द मी इन जनवरी 2024 दुबई में हुआ है। दैट वाज द सेकंड आयुष एक्सपो, इंटरनेशनल आयुष एक्सपो, वेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसा है बहुत जने। आई वाज वन ऑफ द स्पीकर ओवर देयर। मैं भी वहां पर स्पीकर जैसा गया, तो वहां पर जो देखा है, जब अपना रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉम इंडिया, देयर आर सो मेनी फ्रॉम आयुष डिपार्टमेंट से, आयुष के जैसा है आयुर्वेदिक हो, यूनानी है, सिद्धा है,
जो because of our government has sponsored it, support किए, they have welcomed. See, UAE people welcoming IRES it is a great success for us. They have recognized it. They have recognized our total system. जो भी अपना पांचों आयुष के पूरे है, they are recognized it, and they have given a very good platform for us to show what are the success things what we are doing all over the decades, whatever the research we are doing. इसे क्या बोले तो this is one of the great success what I observed it over there. So like this, even further also, we are going to do even I being in IHP, Indian Institutes of Homeopathic Physicians, National Secretary Finance, they may be. IHP also is conducting, we are planning for international seminars, Abhinav. So that will be, it will be coming around 2025 or maximum by 26 also. So we are going now international way. This is what the advancement of whether it is homeopathy or Ayurveda or Unani also. Unani people also, they are doing so much research. Yeah, we have to appreciate that one. So everyone, they have to come forward with whatever they have done their research. Let everyone come to know what they have done. What is the greatness of their party? It's not that this is only alternative system ladder. So we have each system is having merits and demerits. And some, I don't say it is demerit. We have limitations for each system. So let us stand with our limitations also, and let us not tell something that we can choose so and so, so and so. So in spite of telling all these things, just come forward. जैसे अपना जो भी research करते हैं, वो research platform पे लगा के दिखाई that this is what we can do. इससे केवल तो सबको भी इसका आइडिया आ जाएगा what our system can do. So I request everyone also just do documented cases. Whatever the successful cases are there, use the platforms. जहां पर भी जैसे आज अपना वर्ल्ड होम्योपैथिक डे का जैसा है आज नई दिल्ली में, today it is a great honor that our honorary president GB is the chief guest for us for the seminar today's conference. So that's what I request everyone to use these platforms and come forward and show whatever the research they have done. जैसा है अभी research अभी हमारा भी जैसा है, I have presented my few cases like that on even HIV, where so many people were saying that HIV का cure होता है या नहीं होता है. So everyone or in a blindfolded. There is 50-50. 50% they say there is a treatment. 50% they say no, there is no treatment like that. See, we have a documented evidence cases where we have shown even in abroad also, at even in London at the Royal Society of Medicine and University of West London में जो हमारा papers जो मेरा present किया है, everyone has appreciated that yes, homeopathy is doing very good, that you have shown the cases like that. So this is how we have to make it more advanced and more awareness to all over the world also. This is our success, what we have to, which no one can say that these are incurable cases. We are challenging them now. We are challenging with these incurable cases with documentation. Then only everyone will believe the system is what we are doing this. So I request everyone, please, जो भी है आप document कर लीजिए. With the document cases, we can show lot of things. That is what I wanted to tell from my side, and from everyone also, whatever their inputs are there, please you put your inputs and let us appreciate it, and we will let us follow all the things. Let us Thank be you. united. Happy Yes. Honey Monday. Oh, Jai Homeopathy. Jai homeopathy. Ayush is incompleted Right. without homeopathy. Definitely. Welcome. Excellent. Right. So now I would like to request Dr. Divya Dikshit from Gwalior. Dr. Divya Dikshit ji. Please unmute. Good evening, everyone. Good evening to Good all the evening. teachers there, to all the respected seniors there, and a very happy homeopathy day to all of you.
Homeopathy, again, I would like to say it is on an everyday base. It is every day we are seeing new changes coming up in homeopathy. और इतना सारा कुछ चेंज हो रहा है, then again जैसे सर ने बोला है, we need to document every change that is that whatever we see in a practice that has to be documented again, because जितना हम इसको डॉक्यूमेंटेशन में लाएंगे उतना हम उसको लॉजिकल बता पाएंगे. Even if we are treating the cases in homeopathy, our approach should be that the case has to be properly documented so that it can be presented either in the seminars or in the conferences, because ultimately we know that homeopathy works. But उसको logical way में लोगों तक कैसे पहुंचाना है, उसके लिए we have to go through a proper channel, and I think documentation is one of the best channels for it. हेलो हेलो. आप कंटिन्यू करिए, आपका क्या कंप्लीट हो गया? नहीं सर, कुछ यहाँ पर नहीं, आ आ रही नहीं है रहा, आवाज? इसलिए नहीं स्टॉप. नहीं, वी ओके, आर लिसनिंग यू, वी आर लिसनिंग आप, प्लीज कंटिन्यू. राइट. एज फार एज होम्योपैथी कंसर्न विद फीमेल इश्यूज, मैं इतने सालों से इस पर काम कर रही हूँ. इट्स मोर देन 15 to 17 years की मैं इन इश्यूज पर काम कर रही हूँ. तो होम्योपैथी वर्क्स वंडरफुल इन केसेस ऑफ फीमेल इश्यूज लाइक ल्यूकोरिया, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, पीसीओस, ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमास. बहुत अच्छा काम करती है, बिकॉज विदाउट इवन सर्जिकल प्रोसीजर्स हम पेशेंट को उस लेवल पर ले आते हैं जहां पर वो नॉर्मल सी अटेन कर लेता है विदाउट एनी ऑपरेशन. So again, the things need to be documented and an awareness has to be generated. मतलब जो भी लोग हैं उन्हें पता है होम्योपैथी है, पर वो कहाँ काम करती है, कौन सी फील्ड्स में काम करती है, उसके लिए हमें एक अवेयरनेस जनरेट करना है ताकि लोग हम तक अपनी सिचुएशन को लेकर अप्रोच करें. अभी लोगों को ये बहुत गलतफहमी है कि होम्योपैथी धीरे काम करती है, और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं होम्योपैथी बीमारी को पहले बाहर निकालती है. तो ये जो लोगों के थोड़े से जो ये गलत धारणाएं हैं, इनको हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इन धारणाओं को थोड़ा बदलें ताकि वो हमारे पास अपनी अपनी लिबर्टी से आ सके, विदाउट एनी कंफ्यूजन आ सके, और अपने आप को मेडिकेट करवा सके. जी, ये नॉन डिरेक्टिव आप कंटिन्यूअस 15 मिनट बोलने का टाइम है मैडम. बीच बीच में हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं. हमारे यहाँ लेक्चर का ओके यही सिस्टम ओके, डन है, डन डन कंटिन्यूअस डन आदमी डन कर. डन. राइट. जी जी तो जी. अगेन जहां तक हम फीमेल इश्यूज की बात करी, तो वहां पर तो बहुत अच्छा काम करती है होम्योपैथी. पर जो मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि कॉस्मेटिक इश्यूज जो रहते हैं, जैसे स्किन पिगमेंटेशन हो गया है, या एक्ने रिलेटेड इश्यूज हैं, या कोई इश्यू रिलेटेड टू हेयर है जहां पर हेयर ग्रोथ देखने को हमें बहुत मिलती है, वहां पर भी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है. जहां पर हम पेशेंट्स को इन कंसिडरेशन उनका पूरा केस लेते हैं, वी गो थ्रू द होल केस एंड वी सी कि क्या एक्चुअली रूट कॉज है, एंड वी गिव अ गुड सोल्यूशन टू दैट. उसके अलावा भी फीमेल इश्यूज की अगर बात करें तो मेनोपॉज, जो आजकल बहुत ज्यादा एक टॉपिक चल रहा है हार्मोनल इम्बैलेंसेस के ऊपर, बहुत ज्यादा एक लोगों सोसाइटी में एक अवेयरनेस जनरेट हो रही है कि मेनोपॉज है या हार्मोनल इश्यूज हैं. तो ये भी एक ऐसा टॉपिक है, ये भी एक ऐसा इशू है जहां पर होम्योपैथी काम करती है. ना सिर्फ वो आपके स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ठीक करती है, बल्कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक है, आपके मूड स्विंग्स को ठीक करती है, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज ला कर देती है. और ये लाइव केसेस है, मतलब पेशेंट्स जो है वो खुद बताते हैं कि हाँ साहब, हमारे अंदर चेंज हम महसूस कर रहे हैं. बिकॉज अगर हम दूसरी पैथीज के बारे में बात करें, तो वहां पर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है मेनोपॉज के लिए. वो ज्यादा से ज्यादा आपको स्लीपिंग पिल पे डाल देंगे या ज्यादा से ज्यादा वाइटामिन पे डाल देंगे, और उनके पास और कुछ खास अवेलेबल नहीं है मेनोपॉज के लिए. और होम्योपैथी में हमारे पास बहुत स्पेशल मेडिसिन हैं जिन्हें हम देकर ना सिर्फ पेशेंट को मेंटली ठीक करते हैं, बल्कि फिजिकली भी उसकी बॉडी में हम चेंजेस ला देते हैं. तो होम्योपैथी बहुत वंडरफुली काम करती है. बस सवाल ये उठता है कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस डेवलप करनी है, एक ज्ञानवर्धक एक लेसन जाना चाहिए लोगों तक, क्योंकि
उनको ये ना लगे कि सिर्फ होम्योपैथी रिस्ट्रिक्टेड है स्किन के लिए या बच्चों के लिए या सर्दी जुकाम के लिए। होम्योपैथी इतनी वास्तविक रूप में इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि अब ये कॉस्मेटिक फील्ड में या फीमेल इश्यूज में ज्यादा देन अदर कन्वेंशनल मेडिसिन होम्योपैथी को लोग ज्यादा चूज करने लग गए हैं, क्योंकि रिजल्ट उनको बहुत जल्दी दिखने लग गए हैं एंड उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई भी एज ग्रुप इसको ले सकता है और इसको लंबे समय तक लेने से भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ होम्योपैथी एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई एम अ होम्योपैथ एंड आई एम हैप्पी टू सी पेशेंट जो आते हैं मेरे पास, जब वो अपना रिस्पॉन्स देते हैं, जो अपना फीडबैक देते हैं, तो बड़ी खुशी होती है ये जानकर कि हम इतने आगे बढ़ गए हैं होम्योपैथी में कि हम उनके वो इश्यूज को डील करते हैं जिनको दूसरी पैथीज या दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन नकार देते हैं, मना कर देते हैं कि भाई उनके पास उसका कोई इलाज नहीं है। वहां पर हम होम्योपैथी में काफी आगे हैं। एंड आज इस वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर मुझे बड़ी खुशी हुई है आप सब लोगों को ज्वाइन करने का, कि मुझे एक मौका मिला आप सब लोगों से बात करने का और अपने सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में सबको बताने का। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बेसिकली मैं भी ग्वालियर का ही हूँ। अच्छा, अरे वाह सर। अभी भोपाल में हूँ एज ए प्रोफेसर एंड हेड इन मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ओके सर, ओके सर। मैं भोपाल में हूँ इस समय। जी, और बड़ी वैसे बड़ी बेंगलोर खुशी में हुई सर मेरा आपसे घर है, मिलकर, बड़ी वैसे खुशी हुई। कलकत्ता में मेरा घर है। जी जी, ओके सर, ओके सर। आई एम रेसिडेंट ऑफ कलकत्ता। ओके सर, So ओके सर। I would like to welcome Dr. Anirvan Sukul, a renowned name in Calcutta for homeopathy, Dr. Anirvan Sukul. बहुत अच्छा बोली मैडम आप, बहुत ही अच्छा। जुड़ते रहिएगा। थैंक यू सर। आयुष इज इनकम्प्लीट विदाउट होम्योपैथी, जी, सो प्लीज डू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अनिर्वाण सुकुल जी, प्लीज अनम्यूट। यू आर म्यूट। वेलकम वेलकम। Thank you very much, Dr. Saab, and thank you for the participants who have joined. First and foremost, this is the day, it's a holy day, you can say, for we all the homeopaths that we are celebrating, not only in India but all over the world, and the birth anniversary of Dr. Samuel Hahnemann. So this has been also recorded as World Homeopathy Day. So we, the homeopaths who are serving our patients day and night, so this is the day that we have all for. And I would like to congratulate Dr. Pawan Kumar Saab that he has been organized so many online meetings, and especially for today as well, that he has gathered the homeopaths and to celebrate the World Homeopathy Day as well as the birth anniversary of Dr. Hahnemann. So I think this we can take from today onward that we should do more about sincerity. We should show towards our patient. Of course, we are doing so, and because it's a it's a birthday, so that's the place we are for. And sorry, so I am Dr. Anirban Sukul, the director of Sukul Institute of Homeopathic Research. This is placed basically here in Kolkata, and we have a laboratory in Shantiniketan. Of course, we have other activities like publishing journal and organizing conference, world congresses, and offering courses on homeopathy. So thank you very much for all the participants. Thank you once again, Dr. Pawan We Kumar would ji. like to listen from you the highlights of homeopathy and the way ahead. Because the highlights in the sense that Achievements, new researches, new inventions, anything.
anything, Yes. what we have achieved. Yes. This will be Yes. beneficial for society to know. Yes, sure. So, because see, what we are engaging on the spectroscopic studies or the physical basis of homeopathic dilutions mostly. So, what we do FTIR, we do spectroscopy, UV visible spectroscopy on the with the homeopathic dilutions, and see the hydrogen bond, see the water structure there, and see the differences between the potencies. So we are able to some extent, we are able to recognize between the potencies that which is 30, which is 200, but we are not that way, in that much way that we can say that we can able to understand which one. This is the peak for arnica, this is the peak for bryonia. So that is yet to come. Of course, our research program is on the way. We have also done some research on agrohomeopathy and spraying the the highly diluted homeopathic dilutions or in the paddy field, and with this effect of homeopathic dilutions, the growth of rice and the paddy also paddy plant also has been increased. So in other words, you can say this is the total yield has been increased. So homeopathy has a tremendous effect on agrohomeopathy. It's not only that, but homeopathy we have also seen in the photosynthesis, so the rate of photosynthesis is increased. So in that way, it can address to the greenhouse effect. So we have used the homeopathic dilutions, and we have seen that the homeopathic dilutions in our plant model have increased the rate of photosynthesis to some extent. So in that way, it can maintain the, because, the global warming that we are concerned about. So this rate of increase, if you can increase the rate of photosynthesis, we can, in other words, we can address the global warming, which is really a threatening situation for all of us in the next years to come. So in that way, homeopathy also, of course, we have done experiments on the biological model and plant model. You can, starting from lower animals, starting from fishes. We have done experiments with homeopathic medicine. We have done experiments with toads. We have done with mammals like, this mice, rats, these things, and also dog. So in dog, I remember one experiment. This is ICMR, Indian Council of Medical Research. They have really appreciated, and they have taken this for the dirophylaresis, because dogs has also the filariasis, which is called dirophylaresis, and filariasis is zone specific. So where there is filariasis, it will be appearing only in those zones. So we have selected the zones where the dogs have been affected by this filariasis. So we used the Sina. As we all know, it is an anti-helminthic effect of homeopathic medicine. And with that, also we use the diluted acacia auriculoformis. So it's a plant, and we use the saponins of acacia, right? So with that way, with the help of saponins or the diluted form of acacia auriculoformis, it's a plant. And of course, with the Sina, potentized Sina, we could able to reduce the infection. We could reduce the count of the filarial worms. So this has some remarkable achievement, because we do not have any filariasis. We do not have any proper medicine in Western medicine. There is ivermectin, it's a drug of choice for the filariasis, but it's a severely, highly toxic. It can cause a severe damage to your liver permanently of the patients. So ivermectin cannot be accepted in that way as a prolonged kind of treatment. But our homeopathy dilutions
with the form of Acacia auriculiformis and of course with Sina have significantly reduced the filarial worm counts. So with all this, I again congratulate Dr. Pawan Kumarji and to all the participants who have been here today, and our regards to this great man, Dr. Samuel Hahnemann. Thank you very much for inviting me. Thank you. Thank you, Dr. Sukul. Thank you very much. In our Ayurveda also we have Hasti Ayurveda. Much said that it is good news that homeopathy is also trying to do that. But in our Kolkata Gallif Street market, various persons are selling homeopathy tincture and Ayurvedic syrups for parrots, for pigeons. They are already selling this. That is also good news that we are present there also. Yes, the veterinary homeopathy is this is new to India. Of course, this is in Western countries. I have seen in Canada, United States, the veterinary homeopathy is very popular. But yes, that what you are saying, that there are medicines in for the birds, and of course, and we all experience that the pets like maybe cat or dogs, they are our patients. So already. So already the veterinary homeopathy is remarkably highly successful, and if it is a separate wing, so that we can work much more in that area as a veterinary homeopathy, you can say, or whatever. Yesterday was Jammu Day, so we were planning to conduct a webinar for elephants treatment through AYUSH, and tomorrow is Pet Day. Tomorrow is Pet Day. So pet treatments with AYUSH. So because we are connecting everything with our AYUSH. Yes, yes. Of course. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Namaste. Thank you, Professor Pawan Sharmaji, and thanks, Dr. Annevan Tukulji. I read all these 2-3 addresses on homeopathy. I got a little bit query over the Madam Nidivya Dikshit's address, and also because it may be a silly one, but I am innocent to say this thing because I am not having. And because the topic is advancements and opportunities, as we are knowing regarding biochemics and homeopathy since 40-50 years. So the advancement, as she told, that there are so many researches are going on, and we are going with the new formulations. So my simple and humble submission is there any text details there in your text that these are to be used in that way, and simply the simple program based on the symptoms you or any homeopathy starts with at the initial stage? Because as I know in my side, if it is Arogvardhani Vati, initial indications are different and intensive indications are different. And when we allot any of this medicine to any research scholar with a reference that it is not been tried on that indication or in that formulation with that particular Anupan or Sapan, it becomes a research work. But the reference is available in our text. Is there the same discipline in homeopathy? Would you please like to say something on this? Because we are based on the topic on the advancements. So on what foundation the advancement is going on? For example, CPR. Sir, for example, whom you are asking this question? Whosoever is feeling better to answer, because I am in need of answer. All are the big guys and they are ocean of knowledge. So for me, it will be a boost and rejuvenating answer when it will be given from your side. It's the answer to homeopath, irrespective of the speakers. It will enhance our knowledge. Anyway, it can be discussed afterwards. Let us invite our other. We can discuss. Yeah. We can discuss, sir. Yeah. Okay. Directly we can discuss. Anirvanji is having research institute there and very renowned research institute involved, no doubt. In India, not doubt. Not in Bengal, sorry. Anirvanji.
Sorry, sir. What did you say? हाँ, द्विवेदी जी आ गए। हाँ, नमस्कार। एक द्विवेदी जी आ गए। Hello. जी जी। Sorry, sir. What did you say? I couldn't get. Your voice was cracking. सुनाई नहीं दिया। मैं बस एक स्पीकर के बाद सेशन ले लूंगा, ओपन सेशन 5 मिनट और, बस केवल 5। मैं डॉक्टर, ये तो इनका ऑडियो ही नहीं जुड़ रहा है सुनी जी का। हाँ, वीडियो तो आ गया द्विवेदी जी का। डॉक्टर के द्विवेदी जी आए हैं। हाँ, शिल्पा रमडीन है, दिव्या अग्रवाल साहब, बाकी हम लोग तो लिसनर्स में। कामना में अगले उसकी हैं, निशा जी IGNs है। जी जी जी, कामना जी नेक्स्ट वेबिनार की हमारी स्पीकर हैं, चेती चांद में। जी जी, डॉक्टर द्विवेदी जी जी जुड़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट वेबिनार के। द्विवेदी जी कंफर्टेबल हुए हैं तो वो सब क्लियर कर देंगे। एक ही जी पीसी से जुड़े हैं ना? नहीं, हाँ, आई थिंक he is facing problem. He has written me the messages, so we can start open session. If he join, we can continue the session with him. He is at World Homeopathy Day celebration in Delhi. तो मैं अब इस डिस्कशन को चालू रखने के लिए सर आप आज्ञा दें तो हम डॉक्टर गुरुदेव को बुलाएं, सबसे पहले लक्ष्मीकांत द्विवेदी सर को, कि रसशास्त्र और होम्योपैथी का क्या करें। अच्छा, वहां भी आर्सेनिक है, यहाँ भी आर्सेनिक है, वहां भी सल्फर है, यहाँ भी सल्फर है। All poisons, all the chemicals, all metals, everything is there what we have. वो पोटेंटाइज, वहाँ पोटेंटाइज करते हैं, यहाँ बस जी। नमस्कार सर। नमस्कार, शुभ संध्या। ये जो चर्चा चल रही है, हालांकि मैं उससे ज्यादा संबंधित तो नहीं हूँ, किंतु जैसा आपका प्रश्न है कि साहब रसशास्त्र में जो मेटल्स हैं और उनकी जो मात्रा है वो होम्योपैथिक तरह कम हो सकती है, किंतु उसके लिए बेसिक प्रिंसिपल्स अलग हैं। और जब आर्सेनिक की बात आएगी तो हम तो दोषानुसार ही काम में लेते हैं। पवन कफौ हंति मल्ल सिंदूर ताल सिंदूर या इवन मल्ल है तो पैथिक अवस्था में नहीं देते, मात्रा की भी बात छोड़िए। और फिर मात्रा कम है तो उसके लिए जाड़ना का मूर्छना का महत्व है और उस कॉन्सेप्ट में देते हैं। होम्योपैथी की तरह स्थिति नहीं बनती है, समा समम समयति वाली बात नहीं आती है, और विषम विषस्य औषधम ऐसा भी नहीं है। और ऐसा सिद्धांत अगर आयुर्वेद में है तो वो ये है कि जांगम विष के लिए स्थावर विष और स्थावर विष के लिए जांगम विष से उनको परस्पर निष्प्रभावी करते हैं। तो स्थूल रूप में तो विश्व विज्ञान का मामला गतंत्र वाले कोई विद्वान है तो अच्छी तरह से बोल सकेंगे, किंतु जहां तक बात है आर्सेनिक की और आयुर्वेद में लेने की, नहीं बोल रहा हूँ सर, अपने रसशास्त्र की प्रोसेसिंग में और इनकी प्रोसेसिंग में जमीन आसमान का अंतर है। एकदम बिल्कुल। ये कोई भी चीज स्पिरिट में घोल के और उसको टिंचर बना सकते हैं, लेकिन हमारे आयुर्वेद में उसी चीज का शोधन, मारण, फिर जारण, यानी कितनी सारी प्रोसेसिंग बताई है। तो इस विषय में थोड़ा सा आपका हाँ आशीर्वाद। नहीं, उसमें यह है कि साहब हमारे यहाँ जो है वो वैसज्य कल्पना के जो आयुर्वेद के सिद्धांत है उसके आधार पे हम प्रोसेसिंग करते हैं, और होम्योपैथी के अपने डोज बनाने के तरीके अलग हैं। और जितना पोटेंसी बढ़ती जाएगी उसमें दवा की मात्रा कम होती जाएगी, बल्कि बिल्कुल दवा होगी भी नहीं और उनकी पोटेंसी के हिसाब से दवा ज्यादा काम करेगी। और जहाँ तक विष की बात है, हाइफेन है तो हमारे यहाँ प्रोसेसिंग करके शोधन करते हैं और काम में लेते हैं। तो इन होम्योपैथी में भी आई पेन को काम में लेते हैं, किंतु उसके एक्शन में उल्टा है मामला कि हम स्तंभन के लिए आई पेन का प्रयोग करते हैं और होम्योपैथी में स्तंभन के लिए आई पेन का प्रयोग नहीं करते। तो बेसिक ड्रग के इफेक्ट में डोज रिलेटेड मात्रा कम होने से या बिल्कुल मात्रा नहीं होने से उसके प्रभाव अलग आते हैं, ये हम समझ पाते हैं। तो ये भी देखें कि साहब वो विबंध में आर्सेनिक देंगे या विभिन्न जो दूसरी औषधियों के साइड इफेक्ट हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आर्सेनिक देंगे इस तरह का, या फिर होम्योपैथिक दवा अगर एडवर्स रिएक्शन करे तो हम सीधा गंध द्रव्य
कॉफी वगैरह सूंघा देते हैं या प्याज का रस दे देते हैं तो सारे उपद्रव जो है वो नियंत्रित हो जाते हैं। किंतु आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। हर एक द्रव्य के लिए अलग अलग उन्होंने विकार और विकार शांति के उपाय, अजीर्ण और अजीर्ण के उपाय बताए। और जहाँ प्रोसेसिंग की बात आती है तो पंचविध कषाय कल्पना और वो जो सिद्धांत है उसी तरह से रसशास्त्रीय भेषज कल्पना भी है। और रसशास्त्रीय भेषज कल्पना में चूंकि मेटल्स हैं और उनकी धात्विक स्वभाव को खत्म करने के लिए हम लोग जो शोधन मारण की प्रोसेसिंग करते हैं और सुसूक्ष्म चूर्ण बनाना, ये उद्देश्य है। और जो परीक्षण दिए हैं भस्मों के रसशास्त्र के हिसाब से उसमें ये है कि साहब जो सोल्यूबल होगा वो आजकल चाहिए मॉडर्न साइंस के आधार पे, किंतु रसशास्त्र में ऐसा नहीं है। उन्होंने जो दिया है रेखापूर्णता, वारितरता, दंताग्रे किचकिचत्व नहीं करे और नेत्रे निक्षिप्ता नैव पीड़ा अनागपि, और साथ में रस में मधुर हो। तो ये जो स्थितियां बनती है वो तभी बनेगी जब सब्सटेंस जो है वो ज्यादा सोल्यूबल नहीं होगा। अगर सब्सटेंस सोल्यूबल है तो जीवान पे रखते ही उसका टेस्ट और सब पता लगेगा, और इनसोल्यूबल है तो टेस्टलेस होगा। इवन आर्सेनिक भी टेस्टलेस है उस तरह से। या फिर भी उन्होंने एक्शन के आधार पे ड्रग के रसगुण वीर विपाक तय किए, और उसमें जैसे रजत को अम्ल बताया तो टेस्ट में तो ऐसा कुछ है नहीं, उसमें तो अम्ल द्रव रखने से रजत पात्र में वो रिएक्शन वैसा होता नहीं है, कुछ भी घुलता नहीं है। फिर भी रजत का जो रस है वो अम्ल बताया। तो हमारे जो सिद्धांत है पांच भौतिक पिंड ब्रह्मांड के सिद्धांत से ही रसशास्त्र में भी है। और रसशास्त्र में टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग है क्योंकि एक चिकित्सा विधा समकालीन चली आ रही है आयुर्वेद के साथ में। और जब अशोक ने औजार जब्त किए अहिंसा के नाम पे और शल्य क्रिया मंद पड़ी, उस समय फिर बिना ऑपरेशन के जल्दी लाभ मिलने के लिए रसौषधियों को प्रयोग में लेने लगे। इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है। और इसलिए मूल उद्देश्य हमारा है सुसूक्ष्म बनाना। वो बॉडी के जो मेटाबोलाइट्स हैं या धात्वग्नियां हैं वो शरीर में एक्सेप्ट करेगी सब्सटेंस जो जाएगा। और ये ज्ञान उनको था कि मेटल सोल्यूबल है मध्य वगैरह में, और इसके आधार पे लोहा सब वगैरह बनाए। तो ये अयस्कृति जो है वो आसव अयस्कृति इसका उदाहरण है। फिर जो गण वर्गीकरण किए उसमें अंत में गाइडलाइन के रूप में उन्होंने दिया सुरा मंथा सवा रिस्तान लेहा चूर्णा नयस्कृति सहसोपि कुर्वीत बीजे नाने न बुद्धिमान। इस गाइडलाइन के आधार पे और चिकित्सा में जो उपसय अनुपसय में जो उन्होंने हेतु व्याधि विपर्यस्त विपर्यस्तार्थकारी नाम जो दिया, उसमें आजकल उपलब्ध सारी चिकित्सा पद्धतियां आयुष के सिद्धांत में समाविष्ट हो जाती है, ये स्पष्ट है। अब ये बात अलग है कि जो विशेषज्ञ होते हैं उनको अपने विधा का तो ज्ञान है, किंतु संस्कृत और आयुर्वेद की तरफ उनकी रुचि बाद में जागृत होती है। जैसे उड़ोपा साहब है या जो भी ऐसे विद्वान हुए तो पहले उन्होंने मॉडर्न को ही फॉलो किया और बाद में धीरे धीरे जाकर के जब समझ आई तो कहते हैं नहीं आयुर्वेद बहुत अच्छा है और इसमें सब कुछ समाविष्ट है। तो मौलिक सिद्धांत आयुर्वेद के अगर हम समझते हैं और हित अहित के कॉन्सेप्ट से, तो चिकित्सा में ये थानेदारी जो बटी ये बाद में बटी है। पहले तो चिकित्सा उसको कहते हैं जो रोग प्रतिक्रिया हो, व्याधि ठीक हो जाए, धातु साम्य हो जाए। उसमें कहीं एलोपैथी होम्योपैथी आयुर्वेद रसशास्त्र कुछ भी नहीं है। जीवक की जो चिकित्सा की परिभाषा है प्रयोग समयेत व्याधीन योन्य मन्य मुदीरेत। तो ये जो स्थिति बनती है उसको ध्यान में रखना है हमको। तब अब आयुर्वेद से तुलना करना ये एक अलग चीज है। जब बेसिक प्रिंसिपल ही अलग अलग हैं तो उनको अपनी विधा में आगे बढ़ने दें, किंतु आयुर्वेद में होलिस्टिक अप्रोच में सभी चीजें आ जाती है। और सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना जो स्वास्थ्य विज्ञान है, और उसको अगर हम देखें तो ऐसे भेद करना तो यूनानी है या सोवारिकपा है, तो ऐसा कोई ज्यादा मौलिक सिद्धांतों में अंतर नहीं है। द्रव्य के टर्मिनोलॉजी और नाम बदलते हैं, बाकी वही सब चीज रहता है। और मॉडर्न में भी जो है साइंस डेवलप है, काफी कुछ हो रहा है, किंतु जितना हम समझते हैं उसमें रास्ता उनको भी आगे नहीं मिल रहा है। तभी WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन और जो पारंपरिक जो स्थितियां हैं या वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको स्क्रीनिंग कर रही है कि कहीं कुछ पीछे छूट तो नहीं गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। परिपूर्णता वाली बात तो यही है कि सब आप राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद रखें और सभी चीजों को इसमें समाविष्ट करके, और जिसको हम ज्ञान होगा उन औषधियों का प्रयोग करना है, एक सिद्धांत है। तो ये कमीशन और काउंसिल्स और सारी कुछ बने हैं, किंतु उसके बाद में जो स्थिति बनती है वो यही है कि सब नाम से
बदल जाए। हर देश में चिकित्सा विधा का नाम अलग अलग है, और फिर हम लोग उसको आयुर्वेद कहें नहीं कहें, वो ब्राह्मण परंपरा के आधार पे आयुर्वेद नाम है, इतना ही कह सकता हूँ। शैव परंपरा के आधार पे रस शास्त्र नाम है, जैन परंपरा के आधार पे प्राणवाय नाम है। तो जैसे बौद्ध परंपरा से आपने सोवा रिगपा को तो समाधित कर लिया, यूनानी को समाधित कर लिया, और रस चिकित्सा को आपने आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स बना करके एक किसी कोने में रखते वैसे रख दिया। और उसके बाद हम ये सोचें कि साहब रस शास्त्र से तुलना करें, किससे तुलना करें? बेसिक प्रिंसिपल तो वही है सर, इतना आज ही तो अपन कहूंगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा मैं तो वही सर थोड़ा लाना चाहता था। हम लोगों के यहाँ भी लोहा सब में जो लोहा डलता है वो शुद्ध नहीं किया जाता। जनरली लोहा मंडूर डाला जाता है, लोहे की कतरन डाली जाती है, और मेटल्स के आसपास तो मुझे समझ में नहीं आ रहे, लेकिन जनरली यहाँ भी वो टिंचर बनता। फर्क ये है कि ये केवल एक सिंगल टिंचर बनती है होम्योपैथी में, हमारे यहाँ मल्टीपल की टिंचर बनती है। इनके यहाँ डायरेक्ट एल्कोहल में घोलते हैं, हमारे यहाँ सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल उस निकालते हैं। फर्क इतना सा है। अब उसमें कैसे गुण चेंज हो जाते हैं ये एक सोचने की बात है। डेफिनेटली हमारे साथ राउत साहब भी आ चुके हैं होम्योपैथी पे, और कोई विचार देना चाहेंगे डॉक्टर महेश जी या डॉक्टर दिव्या जी? डॉक्टर महेश जी, डॉक्टर दिव्या जी। यस दिव्या जी, नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार दिव्या जी। जी सर, मैं ये बोलना चाहूंगी सर, होम्योपैथी जो है वो एक सिद्धांत पे बेस्ड है, जिसको हम बोलते हैं सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटम। वो ये कहता है कि अगर कोई सब्सटेंस आपके अंदर बीमारी कॉज करता है, तो अगर उसको आप प्रॉपरली पोटेंटाइज करेंगे तो वो उस बीमारी को ठीक भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी आदमी को सल्फर से एलर्जी है, एक जनरल एग्जांपल दे रही हूं मैं, और आप उसको सल्फर पोटेंटाइज करके देते हैं, सल्फर को इतना मिनिमाइज कर देते हैं कि उसका जो इनहेरिट पावर है वही रह जाता है, ऊपर का फिजिकल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, तो वो आदमी सल्फर को रिएक्ट नहीं करता है। एक और एग्जांपल देती हूँ कि अगर किसी को सल्फर की एलर्जी है, आप उसको ले जाके सल्फर के पानी में नहला दीजिए, जो नॉर्मल सल्फर वाटर पहाड़ों में आता है उसको एलर्जी नहीं होगी, क्योंकि वो जो पानी में सल्फर घुला है वो इतना माइन्यूटेस्ट फॉर्म होता है कि वो उसको एलर्जिक रिएक्शन कॉज ही नहीं कर सकता। क्योंकि होम्योपैथी में पोटेंटाइजेशन और ट्राइचुरेशन ये टेक्निक्स हैं जिससे हम दवाई के या क्रूड मटेरियल के अंदर के पावर को बाहर निकाल के लाते हैं। आपने देखा होगा घरों में जब हम छौंक लगाते हैं तो हम जीरे को अपने हाथ में मलते हैं और फिर दाल में डालते हैं। क्यों? क्योंकि मलने से जो उसका अंदर का पावर है, जो उसकी खुशबू है, वो बाहर आ जाती है। उसी तरीके से अगर कोई भी आप सब्सटेंस लेते हैं जिससे होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है, उसको हम इतना ज्यादा तरीके से, इतना ज्यादा पोटेंटाइज, मतलब एक तरह से हिंदी में बोले उसको अपन घिसते हैं, जैसे हम मसाले को आगे पीछे घिसते हैं मसालेदानी में या खलबत्ते के साथ हम उसको पीसते हैं, उसी तरीके से क्रूड मटेरियल को पोटेंटाइजेशन टेक्निक के थ्रू पीसा जाता है ताकि उनके अंदर का पावर बाहर निकल कर आ जाए, जो क्यूरेटिव का काम करता है। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत ही अच्छा। अग्निहोत्री जी। थैंक यू सर। आपने प्रोफेसर द्विवेदी जी से जो अपनी बात मंतव्य रखा था कि आयुर्वेदिक औषध निर्माण विशेष रूप से शास्त्र की और होम्योपैथिक औषध निर्माण में क्या सारूप्यता है, क्या निकटता है और क्या समीचीनता है या क्या भेद है, मुझे याद आया गुरुदेव ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। इस क्रम में आशुकारिता का भी विषय मेन हो जाता है, और यदि हमारे आज राजन पटंकर जी जुड़े होते तो वो सूक्ष्म औषध बनाने के क्रम में इसमें और अच्छे गाइडलाइन देते कि वो क्या करते, क्योंकि उनकी मात्रा भी घट जाती है जैसी कि इनकी घटती। सर आप म्यूट। नहीं आवाज आ रही होगी सर। हाँ अब आ गई। अभी आपने दूर से क्या, तो पहले भी उन्होंने कुछ बताया था, उनका भी जो प्रक्रिया होती है उससे मात्रा कम कर लेते हैं और संयोग तक को वो सूक्ष्म बनाते हैं, उन्होंने तो हम ये हमेशा बताया है। तो जैसे आसव रस तो बड़ी मात्रा में पिलाए जाते हैं, लेकिन रस औषधियां विशेष रूप से नेक्स्ट वेबिनार प्लीज कंक्लूड।
हाँ, ठीक। तो आज हमारे जो अतिथि वक्ता होम्योपैथी दिवस को मनाने के लिए आज हमारे आमंत्रण पर उपस्थित हुए, उन सबका हृदय से आभार करते हैं। और उन्होंने जो जानकारियां दी, अभी जो मैडम दीपा दीक्षित जी जो बता रही, दिव्या दीक्षित बताया, उन्होंने भी इस चीज को रखा कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है फीमेल पेशेंट्स के लिए, फीमेल हार्मोनल डिस्टर्बेंस के लिए और कॉस्मेटिक्स पर्पज के लिए। तो ये भी कुछ ऐसे क्षेत्र यहाँ पर है। और स्पेशली जैसे उन्होंने कहा कि हम सेफ हैं, तो लॉन्गर पीरियड के लिए भी हम जैसे स्किन